Hello everyone, welcome, and we are doing structure and function of the living organism. We have begun this chapter since long and we have not completed it yet, but never mind, this chapter is pretty long and it will take some time. And we have studied about cell, tissue, organs, organ system, and we have studied about digestive system, right? Digestive system में हम लोगों ने पढ़ा different organs that take part in digestion, and we have studied about teeth, different types of teeth, and parts of different region of tongue and taste buds, about saliva. And this we have not done. Open your mouth. This activity we have not done. So let's see what is there. Open your mouth and look into the mirror. Observe the teeth and their shape and size. Count the number of incisor, canines, premolars. Now look into your friend's mouth. अभी तो घर में friends तो होंगे नहीं, तो look into your brothers, sisters or parents' mouth and count the number of teeth. It will vary for sure, क्योंकि एडल्ट के नंबर ऑफ डेथ और किड्स के नंबर ऑफ डेथ में डिफरेंस होता है. एंड लेकिन एक चीज़ पक्का रहता है कि सारे लोगों की, तुम्हारे पास भी इंसिजर है जिससे तुम कट करते हो, कनाइन से जिससे टीयर करते हो, प्री मोलर एंड मोलर फॉर च्यूइंग द फूड. जानते हो, दिस इज़ द बेसिक थिंग, पहले भी पढ़ चुके हो. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ डू द एक्टिविटी इन पेयर. तो यहाँ पर पेयर, अगेन you can ask your brother and sister to help you out. Prepare 4 types of solution with sugar, salt, lemon, and a bit of leaf extract of neem. Ask your partner to put the solution one by one. नीम कैसा लगेगा भाई, सोच लो. कभी खाया है? But it is good. नीम के पानी से माउथ वॉश करने से जर्म्स वगैरह से जर्म्स वगैरह से मुक्ति मिलती है ना. और neem is a medicinal plant and its virtue is काफ़ी अच्छा. इसकी खूबियाँ बहुत सारी हैं. On your tongue, using a dropper, try to identify each solution from its taste. Which part of the solution, part of the tongue senses the taste of each one of them. चलो ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो. Now oesophagus, we have studied about oesophagus. It is a tube-like structure, and stomach, liver and pancreas, we have done this, and anus and respiratory system we have done. This is you can see the previous video about nasal cavity, pharynx, windpipe, lungs. I'll be sharing one video of how lungs function. It's a very interesting animated video. There are these days, there are so many interesting, from by seeing those videos your concept will be clear how it works. So I'll share one such video. You can find it number of videos on YouTube, but I'll share one with you all. And diaphragm, lungs cannot move by themselves. It is the movement of diaphragm you have studied in stat 5 also, कि ये कहाँ पर सिचुएटेड रहता है. इसी की मदद से वो जो लंग्स है वो एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है. मीन्स व्हेन वी टेक, सांस लेके देखो, गेट कि इनहेल करने पर क्या होता है, नीचे का डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होता है एंड योर लंग्स गेट फिल्ड विद एयर. और व्हेन यू एक्सेल, नाउ एक्सेल, व्हाट हैपन्स, नीचे चला जाता है रिब्स, जो डायफ्राम है. व्हाट हैपन्स, now observe it, try to observe करो इसको and see what happens. Now a baby is born with the pink lungs. As the child grows older, his lungs get darkened due to the impurities of the air. Definitely भाई मेरा lungs तो अब तक तो काला ही पड़ गया होगा. Now on the average, the lungs of an adult man can hold about 6 liters of air. काफ़ी जगह बना लेते हैं. 6 लीटर जो थम्सअप का बॉटल आता है ना, दैट इज़ ऑफ 2 लीटर, 2.5 लीटर, और 6 लीटर एयर लंग्स, एडल्ट लंग्स जो है कैरी कर सकता है. एयर कैन शूट आउट अस एज फास्ट एज मोटर बाइक. ड्यूरिंग स्नीजिंग, एयर रसेस आउट एट about 160 kilometer per hour. 160 kilometer. Imagine
when I ride, so that speed goes up to 60 kilometer, and 60 kilometer when I ride, so it is pretty fast. 60 to 65 kilometer. Now imagine 150 kilometer per hour. Comparison करोगे then you will find out कि it's very fast. बहुत तेजी से air rush out करता है when you sneeze out. Now next is breathe out some air, your mouth on a clean mirror. What do you observe? The clean mirror becomes cloudy, and you may even find some tiny water droplets on it. कैन यू एक्सप्लेन? और आजकल तो और बड़ी आसानी से होगा, विंटर सीज़न है ना, खूब सारा। इसका क्या रीज़न है? ठंड के टाइम में ज़्यादा क्यों व्हेन वी ब्लो आउट थोड़ा धुआं टाइप से निकलता है, बड़ी मज़ा आता है करने में, वो ऐसा क्यों होता है ज़रा सोचना। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, क्या हमें कुछ हीट और वगैरह से कुछ रिलेटेड है कि नहीं। नाउ लेट्स सी द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमने खाना तो खा लिया, उसको पचा भी लिया, तो उसका न्यूट्रिशन कैसे जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। लेट्स स्टडी इट। नॉरिशमेंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड द फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इज कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड, है ना। Blood circulating in the body keeps on carrying fresh nourishment and bring back waste products. All this gets done by a system of organ which constitute the circulatory system. Just like digestive system में windpipe था, pancreas, lungs, no lungs not, stomach, liver, intestine, ये सारे थे। उसी तरह से just like in respiratory system, नॉस्ट्रिल, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स वगैरह थे डिफरेंट पार्ट। उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में भी एक सेट ऑफ ऑर्गन है विच कैरी आउट द फंक्शन ऑफ सर्कुलेशन। नाउ द फर्स्ट इज हार्ट। हार्ट का एक बड़ा काम होता है, माइटी वर्क ऑफ सप्लाइंग द ब्लड, प्योर ब्लड, पंपिंग द ब्लड टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी जितना भी हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो तो लंग्स ने ले लिया, लेकिन जो लेने के बाद उसे बॉडी में पहुंचाने का काम, पंपिंग का काम कौन करता है? हार्ट करता है। इसका भी आई विल शेयर वन वीडियो, तो तुम्हें काफ़ी फ़ायदा लगेगा। आई विल शेयर इट, ओके। द हार्ट इज़ लोकेटेड, जानते ही हो कहाँ पर है? लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जिसके कारण जो हमारा जो लेफ़्ट लंग्स होता है, लेफ़्ट लंग्स जो होता है वो थोड़ा क्या होता है? छोटा होता है, बिकॉज हार्ट इज सिचुएटेड। इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन रफली इन द साइज क्लोज फिस्ट ऑफ अ पर्सन। अगर तुम्हें अपने हार्ट का साइज़ अगर जानना है तो क्लोज योर फीस्ट, अपने हाथों को मुट्ठी बांधो और देखो तो अपनी मुट्ठी को कितना बड़ा हो रहा है। इतना ही बड़ा तुम्हारा दिल है भाई। बड़ा दिल होने से नहीं होता है ये, हाथ दिल का साइज़ यही है। तुम्हारा हार्ट का साइज़ वही है जो तुम्हारे फीस्ट का साइज़ है। तुम बंधी हुई मुट्ठी का जो साइज़ है वही तुम्हारे हार्ट का साइज़ है। ये जो इतना बड़ा यहाँ पर दिख रहा है, एक्चुअली इट इज़ जस्ट द साइज ऑफ योर फीस्ट, क्लोज्ड फीस्ट ऑफ द पर्सन। द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। ईच हाफ इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स। मतलब टू चैम्बर्स मतलब ये हाफ हुआ, उसके बाद ये दोनों दो चैम्बर्स बने हुए हैं। Now there are thus 4 chambers in all. The upper 2 chambers are called auricles. इसको जो कहते हैं auricles, and नीचे वाले को कहते हैं ventricles, है ना। ये है auricle, ये है auricle and ये है ventricles. Okay, so I'll show you the video one. Okay, now see. And the lower 2 chambers are called ventricles. The left auricle, that is atrium, and left ventricle contain oxygenated blood. इसको देखने में पता चलता है, देखो ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये दिस प्योर ब्लड एंड दिस इज मतलब oxygenated blood. If it is red, it is it is indicating that it is oxygenated blood. इसमें oxygen mix up and it has to be sent to the different parts of the body, whereas
the impure blood is being brought from the different body parts in the right ventricles. और राइट वेंट्रिकल से अगर आया है तो इट हैज़ टू बी सेंड टू द लंग्स, ताकि वो एक्सेल हो जाए और बाहर निकल जाए. वेर एज इनहेल होकर के जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन जब आया तो दैट लंग्स से वो इसमें आने की ज़रूरत है. ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या चीज़ है. आई विल शोइंग द वीडियो ऑल्सो. द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट टू पंप blood and keep it moving to the blood vessels. Now what are blood vessels? भाई खून रखने का बर्तन क्या है भाई हमारे बॉडी के अंदर. Now blood moves around in the body through a system of tubes called the blood vessels. Blood vessels में क्या क्या चीज़ हो गया, arteries and veins, और इन दोनों को जोड़ने के लिए capillaries. चलो देखा जाए. There are three types: arteries, veins, and the capillaries. The vessel which take the blood away from the heart to various part of the body is called arteries. It means अगर हार्ट से जा रहा है different parts of the body, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो प्योर ब्लड है. तो प्योर ब्लड किस में जा रहा है, आर्टरीज से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जा रहा है. द वेसल्स ब्रिंगिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, यानी जो वापस हार्ट की तरफ आ रहा है, पंपिंग होना है, उसको क्लीनिंग करना है, पंप करके उसको वापस भेजना है कहाँ पर, लंग्स में, जहाँ पर वो ऑक्सीजनेट होकर के दोबारा कहाँ पर आएगा, हार्ट में आएगा. हार्ट के किस पार्ट में आएगा, जस्ट सी अबव. द वेसल्स ब्रिंगिंग ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड veins. Generally arteries carry oxygen rich blood while the veins carry blood having carbon dioxide in it. Arteries are elastic and thick, ये थोड़ा सा stronger होता है, and are deep seated. The veins are then thin walled and superficial as they are located just under the skin. कभी कभी इंजेक्शन जो लगता है ना, वेन्स ढूंढा जाता है, ब्लड टेस्ट वगैरह होता है तो वेन्स में से निकाला जाता है, आर्टरीज में से ब्लड नहीं निकाला जाता है. द आर्टरीज एंड द वेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फाइन वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज. कितना छोटा छोटा वेन्स होगा वो कैपिलरीज, जो ये भी ब्लड वेसल्स है, ये कितना पतला होगा जो है, विच इज़ कनेक्टिंग आर्टरीज एंड द वेन्स. लेट्स सी ब्लड. अब ब्लड के बारे में, ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबा. Now it is a thick red fluid containing red blood cells, white blood cells and blood platelets. और भी होते हैं, लेकिन चलो अभी तुम्हारी किताब में इतना ही दिया. लेट्स स्टडी. द फंक्शन ऑफ द ब्लड आर टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स एंड हार्मोन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो भी हमारे बॉडी को ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, जो न्यूरिशमेंट है, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसको ले जाना है. हार्मोन्स जो सिक्रेट हो रहे हैं उसको प्रॉपर प्लेस पे, उसको जगह पर भेजना है, तो वो सब चीज़ के लिए क्या हमारा हेल्प करता है, ब्लड. ओके, नाउ टेक कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो ज़रूरत नहीं है उसको फिर ले जाने का भी काम वही करता है. प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़ एंड अदर इन्फेक्शन, हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है इसमें, तो इसका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. नाउ लेट्स सी दिस एक्टिविटी. प्लेस 2 और 3 फिंगर्स स्लाइटली. अच्छा, यू हैव टू सी कि क्या भाई कितना काउंट है भाई तुम्हारे पल्स का काउंट. ओके, ऑब्जर्व द हैंड्स एंड लेग्स ऑफ योर पेरेंट एज वेल एज योर ओन. लुक एट द ग्रीनिश ब्लू लाइन्स. यस, दिस इज अबाउट द वेन्स की बात हो रही थी. These are veins that can be easily seen. Arteries which lie little deeper under the skin cannot be seen easily. उसको आसानी से नहीं देखा जा सकता है ना. ये the interesting देखो fact है. Do you know, these are very interesting facts. Blood contains a substance called hemoglobin which contain iron. ये आयरन दिखता है क्या, नहीं ना. तो hemoglobin gives blood in its red color. Insects have blue, green or colorless blood. They have no hemoglobin. मतलब उन लोगों को आयरन की ज़रूरत नहीं होती है ना. The left side of the heart is bigger than the right. हार्ट की वजह से. Heart beat is the sound of heart makes when the heart valve open and close. Valve होते हैं. when I'll show
when you will see the video then the things will be clear कि क्या वाल्व कैसे काम करता है, एक ही साइड में खुलता है कि दोनों साइड से कोई भी इधर उधर जा सकता है. इज़ अ कॉम्प्लेक्स, तो हार्ट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन. तो सुनते हो हार्ट सर्जरी होता है तो सोच लो वो जो डॉक्टर बनते होंगे उन लोग कितना स्किल वो लोग अक्वायर करते होंगे कि दे ओपन द हार्ट, डू द सर्जरी एंड देन क्लोज इट एंड द ह्यूमन बीइंग इज वेल ट्रीट हो जाता है. हार्ट का मतलब हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड a doctor can listen to the sounds of by placing stethoscope. I am sure that stethoscope तो ज़रूर तुम लोग बचपन में भी खेले होगे और तुम लोग बना भी सकते हो स्टेथोस्कोप घर में. एक इंटरेस्टिंग पहले लोग खेल खेलते थे अलग अलग तरह से स्टेथोस्कोप बना करके, है ना. चलो तो आगे मतलब वो खेलने वाला, मतलब ऐसा नहीं कि जो तुम बना के दोगे और डॉक्टर को जाके बेचोगे तो डॉक्टर खरीद लेगा, वैसा नहीं बना सकते हो तुम. ऑफ कोर्स बना सकते हो लेकिन इट हैज़ टू उसका एक अलग प्रोसेस होता है ना. ह्यूमन हैव 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स. अरे ए बी एंड अपना ब्लड ग्रुप क्या है भाई तुम्हारा, ज़रा पूछना मम्मी डैडी से. द रेट ऑफ हार्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. The heart beats on an average 72 times per minute. This beat rate increases during exercise, exertion, or a person is excited. जब गुस्सा आता है तो हार्ट बीट बढ़ जाता है, नहीं, या फिर तुम खेल के आते हो तो हार्ट बीट बढ़ जाता है. While when you're relaxing, it is normal. Now the heart of a newborn baby beats 140 times per minute, whereas the heart of a 3-year-old child 100 times. हाँ, तुम लोग का हार्ट बीट इसी के आसपास होगा. नाउ नर्वस सिस्टम में अब क्या है भाई, इसको आज कंप्लीट किया जाए कि छोड़ दिया जाए. कुछ लंबा वीडियो बन गया है. आई होप कि ये किया जा सकता है. सो नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज सिस्टम ऑर्गन विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ योर बॉडी. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स. अब तुम जो सुन रहे हो मेरी बात उसको एक्ट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, या फिर तुम जो बात मेरी नहीं सुन रहे, इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, प्लेइंग विद द वीडियो, यू आर नॉट एबल टू फोकस, तो ये सारा काम किसकी वजह से होता है? नर्वस सिस्टम. और वो नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट क्या है? ब्रेन इज़ द मोस्ट delicate and important organ of the nervous system. It is situated in the head and is well protected by the skull. It about 1.35 kg. It weight, ये सब है ना MCQ में आ सकता है, one word answer में. So it weigh about 1.35 kg. The brain का मतलब ज़्यादा भारी नहीं होता है भाई. The brain controls most of the human activities, है ना. The right portion of the brain controls the left part of the body, whereas the left portion बहुत छोटा सा दिया हुआ है ना. ना cerebrum is the upper, जैसे दिख रहा है, this is the upper part of the brain. It contains 2 hemisphere, 2 जगह से है. and इसका जो मेजर काम है, it is responsible for receiving and giving meaning to information from the sense organ as well as controlling the body. इसी के कारण जो भी सेंस ऑर्गन से जो मैसेज रिसीव हो रहा है उससे जो बॉडी को हम लोग कंट्रोल करते हैं उसमें ये हेल्प करता है. एंड दिस सेरेब्लम, दिस इज सेरेब्रम एंड दिस इज सेरेब्लम. देख रहे हो ये पीछे की तरफ है. एंड द बॉटम ऑफ द ब्रेन. और इसका भी फंक्शन वही ऑलमोस्ट है. द सेवरल फंक्शन रिलेटिंग टू द मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन. इसमें मेंटेनिंग बैलेंस, मेंटेनिंग बैलेंस के लिए ही इसका और बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे यूजेस फंक्शन है. बट इसका भी वही फंक्शन है कि ये मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है और बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट इज मेडुला. मेडुला देखो तो थोड़ा गंदा हो गया नहीं. See, medulla is a stem like structure. देख रहे हो ना, stem like structure है. And it is responsible for
इनवॉलेंटरी फंक्शंस, मतलब जैसे छींक आ रहा है या फिर जो चीज़ पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है वो होता है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ मेडुला। ओके, कोन शेप्ड, देख रहे हो कोन शेप्ड है। एंड नेक्स्ट इज एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये देख रहे हो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये लास्ट ब्रेन के एंड से शुरू हो रहा है और नीचे तक जाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड जो है बैकबोन के पीछे प्रोटेक्टेड रहता है। और ये इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट कैरी इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेजेस between the brain and the rest of the body. Okay, so this is short description about the brain. Now next is by the age of 5 a child brain reaches 90% of its full weight. देखते हो ना छोटे बच्चे का सर कितना बड़ा लगता है। And the brain is roughly shaped like a walnut kernel. देखे हो ना ये अखरोट। Now spinal cord is a tube-like structure. It's a tube-like structure which is attached to the brain. It runs inside the vertebral column. Back side में होता है ना vertebral column, इसी के inside में रहता है. The spinal cord is about 50 centimeter long. One word answer, question answer में आ सकता है. It carries messages from the brain to all parts of the body and from body to body part and body part back to the brain. यहीं से सिग्नल का आदान प्रदान, इसीलिए spinal cord is very important. Nerves system is made of billions of nerve cells which carry messages throughout the body. उंगली में चोट लगती है लेकिन दिमाग मैसेज देता है कि भाई चोट लगी है, तो तुम उसी उंगली का ट्रीटमेंट करा, तो ये नहीं कि चोट लगी है दूसरी उंगली में और ट्रीटमेंट के, बिकॉज यू नो यू आर एबल टू टेल वेयर यू आर हैविंग द प्रॉब्लम, तो बिकॉज ऑफ नर्व सेल्स. द नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ बिलियंस ऑफ, बिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? कितने ज़ीरो होते हैं? काउंट क्लास 5 में नंबर सिस्टम पढ़े हो ना, 6 ज़ीरोज़ होते हैं. ओके चलो काउंट कर लेना, पता नहीं सही है कि नहीं. जस्ट so the message travel through the cell as a small electrical current called nerve impulse. Nerves are two types, sensory nerves and motor nerves. The sensory nerves carries from the sense organ, sensory, quite याद रखना आसान है कि सेंसरी में सेंस ऑर्गन से जो मैसेज आ रहा है, एंड द मोटर नर्व्स कैरी कमांड्स गिवन बाय द ब्रेन टू द मसल्स. सेंसरी nerves carry messages from the sense organ to the brain, whereas motor nerves carry commands given by the brain to the muscles. Okay, now sense organ क्लास 5 में पढ़े हो भाई, ये आराम से कर लोगे कि क्या ही कहाँ से सुनते हैं, कहाँ से देखते हैं, कहाँ से सूंघते हैं, कहाँ से खाते हैं, कहाँ से फील होता है, दैट यू ऑलरेडी नो. देर अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड इन आवर टंग. We blink on an average about 6 times a minute. यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 6 times a minute हम लोग ब्लिंक करते हैं, लेकिन जब तुम मोबाइल पर कोई इंटरेस्टिंग चीज़, हाँ मैडम का वीडियो तो ज़रूर ही नहीं देखते होगे, उतना पूरा का पूरा वीडियो देखना मैं जानती हूँ कि इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन अगर तुम्हारे चीज़ काम का चीज़ होता है तो यू वॉच द वीडियो और द थिंग्स दैट इंटरेस्ट यू विदाउट ब्लिंकिंग. अब 6 times ब्लिंक करना है कितने देर में? 1 मिनट में 6 टाइम ब्लिंकिंग है. एंड इफ़ यू आर स्टेयरिंग टू द मोबाइल फॉर कंटिन्यूसली विदाउट ब्लिंकिंग, इट विल गिव यू ड्राई आइज, आँख में पानी आने लगेगा, मतलब इट इज़ हार्मफुल फॉर द आइज़. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आइज़ को ब्लिंक करते रहना है. So let's stop here only, up till here we have completed, and in next class we will do excretory system. Till then enjoy and study hard. Thank you and bye bye.